Good morning, everyone. Today we will discuss about pulse. What is pulse and what is pulse rate? The pulse, by the help of which we can detect whether a person is alive or dead. In this class, we will discuss about pulse, blood pressure, and types of blood pressure. So please look here and listen carefully. Pulse. The distension of an artery. The distension of an artery. Each time the blood is forced into it is called pulse. Distension of an artery. Each time the blood is forced into it is called pulse. ब्लड वेसल में पास होने के लिए जब वह आर्टरीज पर फोर्स अप्लाई करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज डिटेक्टेड एज पल्स. Pulse rate of a person is equal to the number of heartbeats per minute. Pulse rate is equal to the number of heartbeats per minute. That means the total number of pulse rate in 1 minute is equal to the total number of heartbeats in 1 minute. So pulse rate of a person is equal to the number of heartbeats per minute. Arteries are deep seated in our body, but a few lie close to the surface of our skin. Generally, arteries are deep situated in our body, but in some part, generally above the part of a skin, yani just below the skin. Most part of body में arteries present deep inside the organ, नीचे होता है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां आर्टरीज ऊपर होते हैं, जैसे रिस्ट. जनरली डॉक्टर चेक्ड आउट द पल्स ऑफ पर्सन by pressing with two finger, index finger and middle finger on the wrist. तो रिस्ट पे ही चेक किया जाता है, बिकॉज इन द रिस्ट द आर्टरीज above. In wrist, neck, temple, these location arteries present above, but most of the part in the body आर्टरीज सिचुएटेड डीपली, यानी अधिकांश भाग जो होते हैं बॉडी के उसमें आर्टरीज नीचे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पर आर्टरीज ऊपर होते हैं. ब्लड प्रेशर. द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल. The force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. वह फोर्स जो कि ब्लड के द्वारा वेसल के वॉल के अगेंस्ट लगता है, वह फोर्स जो ब्लड के द्वारा वेसल के वॉल के अगेंस्ट अप्लाई होता है, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर. It is measured by a sphygmomanometer. What is a sphygmomanometer? The instrument, the device which is used to measure the blood pressure of human being. Or we can say the sphygmomanometer is the instrument, is the device used to measure the blood pressure in human beings. By the help of a sphygmomanometer, we can
measure the blood pressure. Blood is forced into arteries during contraction of heart only. आर्टरीज में ब्लड जो फोर्स्ड होता है, ब्लड को जो पुश किया जाता है ओनली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, बिकॉज व्हेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट टेक प्लेस, जैसे ही हार्ट सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के कारण प्रेशर इंक्रीज होता है, एंड दैट इज व्हाई ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरीज। और यही कारण है कि ब्लड जो है पुश होता है आर्टरीज में। वही ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इट इज नॉट पुश्ड इनटू द आर्टरीज बट मूव्स कंटिन्यूअसली बिकॉज इट नीड्स लेस प्रेशर, लेस फोर्स। The force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. Blood is forced into arteries during contraction of heart only. At this time, blood has more pressure. When the heart relaxes, it does not pushes blood into arteries. When the heart relaxes, जब हार्ट रिलैक्स होता है दैट मीन्स एक्सपैंड करता है, इट डज नॉट पुशेस ब्लड इनटू आर्टरीज, तब यह आर्टरीज में पुश नहीं होता है, इस पे फोर्स नहीं लगते हैं, बट ब्लड स्टिल फ्लोज, blood still flows in them, therefore there is less pressure in them. less pressure होते हैं उस समय प्रेशर कम जाते हैं जब हार्ट रिलैक्स होता है। हार्ट रिलैक्स होना दैट मीन्स फैलना, यानी जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसका साइज एक्सपेंड करता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण इनसाइड द हार्ट प्रेशर इज डिक्रीज्ड एंड लेस प्रेशर exerts in the arteries during relaxation of heart. हार्ट के रिलैक्सेशन के समय आर्टरीज में प्रेशर कम जाते हैं, बट द फ्लो ऑफ ब्लड कंटिन्यू, जो आर्टरीज में फ्लो हो रहा है ब्लड वो कंटिन्यूअस फ्लो होते रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, बिकॉज द लेस प्रेशर ऑल्सो मेंटेन। Due to this reason, blood pressure is of two types: systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Systolic blood pressure and diastolic blood pressure. The pressure which the blood exerts on the wall, the pressure which the blood exerts on the wall of arteries at the end of contraction of the heart is called systolic blood pressure. The pressure which the blood exerts on the wall of arteries, blood के द्वारा आर्टरीज पे लगने वाला वह प्रेशर जो कॉन्ट्रैक्शन के समय लगता है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के समय, हार्ट के सिकुड़ने के समय, जिस समय हार्ट सिकुड़ रहा होता है उस समय आर्टरीज पर जो प्रेशर लगता है दैट इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जस्ट अपोजिट ऑफ इट, द प्रेशर which the blood exerts on the wall of arteries, the pressure which the blood exerts on the wall of arteries when the heart is relaxed is called diastolic blood pressure. So during relaxation of heart, the pressure exerts on the wall of arteries are known as diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure. जिस समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय जो प्रेशर लगता है वॉल ऑफ आर्टरी पर उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, हार्ट जब रिलैक्स हो रहा होता है, हार्ट जब एक्सपैंड कर रहा होता है, हार्ट जब फूल रहा होता है, उस समय जो प्रेशर आर्टरीज के वॉल पे लगता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिकॉज सिस्टोलिक टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट and diastolic takes place during the
relaxation of heart. So the pressure is exerted systolic greater than diastolic. Systolic blood pressure is greater than diastolic blood pressure. एक नॉर्मल रेंज रखा गया है ह्यूमन का ब्लड प्रेशर का कि एक हेल्दी पर्सन में क्या रेंज होते हैं ब्लड प्रेशर के. व्हाट इज द रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर. एक हेल्दी पर्सन एवरेज ड्यूरिंग द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वन 120 millimeter Hg and diastolic blood pressure 80 mmHg. So it is measured as used like 120 by 80 mmHg. एक नॉर्मल रेट जो लिया गया है नॉर्मल वैल्यू एवरेज वैल्यू ब्लड प्रेशर का एक हेल्दी पर्सन का वो सिस्टोलिक में 120 mmHg दैट मीन्स मिलीमीटर मरकरी जिसको एब्रिविएशन फॉर्म में mmHg लिखा जाता है. डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर किया गया 80 और इसी को जो एक नॉर्मल रेंज ऑफ प्रेशर नोट किया जाता है 120 by 80. After the age of 60 or above the 60, 140 mm is also as normal pressure. Above the age of 60, 60 के एज के बाद एज ऑफ 60 above 60 years old 140 mmHg 140 mmHg also as normal pressure. That means ओल्ड एज में 140 भी एक नॉर्मल प्रेशर लिया जाता है. तो व्हेन वी कैन से हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन कब हम कहेंगे कि प्रेशर हाई है या हाइपरटेंशन. ए कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. ब्लड प्रेशर में एक्सट्रीमली इंक्रीजमेंट हो जाना दैट मीन्स 120 के बजाय 150 हो जाना 160 हो जाना या डायस्टोलिक 80 से 100 हो जाना. तो इस तरह के चेंजेस होना वेरिएशन होना हाइपरटेंशन का स्टेट होता है. एंड ऑल्सो सम टेम्पोररी कंडीशन टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बट दैट इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर. During fear, during decomposition of cholesterol and any type of tension, अगर किसी तरह का कोई मेंटल या फियरनेस इस तरह के या कोई फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं उसके कारण यदि कुछ टाइम के लिए टेम्पोररी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है दैट मीन्स इज नॉट केस ऑफ हाइपरटेंशन. तो उसे हम हाइपरटेंशन नहीं कर सकते. लेकिन नॉर्मली ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहना दैट इज वेरी डेंजरस एंड द सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज मैनी टाइम्स इट कैन रप्चर्स आवर आर्टरीज आवर द वेसल्स एंड इंटरनल ब्लीडिंग टेक्स प्लेस. बहुत बार होता है कि एक्सेस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाते हैं. ब्लड वेसल बर्स्ट हो सकते हैं फट सकते हैं और यह डेंजरस भी हो सकता है फैटल भी हो सकता है जानलेवा हो सकता है. तो
hypertension, a consistent increase in blood pressure. A consistent increase in blood pressure is called hypertension. We should remember the systolic blood pressure 120 mmHg millimeter mercury and diastolic blood pressure 80 millimeter Hg. That means it is denoted as 120 by 80 mmHg.